Most of my patients today are facing neck issues, which is probably because of working at home and of course the COVID situation that has brought us working at home where we don't have the right kind of ergonomics. And I have created this video in order to give you a better idea about all the neck problems and how you can get rid of these neck problems by doing the right kind of exercises. Certain questions that my patients also ask me is also the kind of pillow that needs to be used, which I'll be also clearing off in this series. So welcome to my series, and I'm Dr. Sudarshan and we are going to talk about neck exercises. So today I have with me a patient, her name is Shipra, and she anyways is also suffering from neck pain. Now one of the most common thing that I have seen with most of the people suffering from neck pain is a forward head. And the best exercise that I suggest to all my patients is firstly retracting their shoulders. Can you just stand? So most important thing is that first what you need to do is get your shoulders retracted. Now this is one position which will get your shoulders in line as well as get your neck in line, and this is what we normally tend to miss out. So first exercise, which is actually retracting of the shoulder, this can also be a part of your regular exercise regime. And besides that, whenever you are sitting for your office work or probably working on a computer, it is important that you keep doing this particular retraction exercises, which can actually be a help to your muscles of the trapezius area, because this is the area where you have all your trapezius muscles. Here is the upper trapezius, the middle trapezius and the lower trapezius. They're all situated in a band-like structure which covers your upper back as well as which covers your neck as well as the upper back. So in order to get relief for these structures, it's important that there is a good amount of retraction that we do in order to sustain this. So this is first exercise that you need to do. इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी बता दूंगा. ये शोल्डर्स को हमें हमेशा पीछे की तरफ रखना है. आप जितना शोल्डर को आगे की तरफ लेके जाओगे, नेक भी उसी तरह और थोड़ा सा आगे जाएगा. तो हम ऐसा करेंगे कि नेक को हम एक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन लाने की कोशिश करेंगे और ये शोल्डर को इस तरफ रिट्रैक्ट करना है. इसका आइडिया ये है कि जो भी मसल्स हमारे स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो नेक के हो या अपर बैक के हो, ये पूरी तरह हम इसको सपोर्ट कर सकें और ये ब्रेक कॉन्स्टेंटली मिलते रहना चाहिए. तो आप ये एक्सरसाइज जब आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो ये आप हर घंटे में कम से कम 5 से 10 बार इसको डेफिनेटली कर सकते हैं. इसके अलावा जब आप अपने नेक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो इसे पीछे पूरी तरह स्ट्रेच करके 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना और इसके बाद इसका 10 काउंट्स तक आप इसको कर सकते हैं. सेकंड एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे वो है चिन टक. चिन टक करने के लिए आप एक सॉफ्ट पैड या फिर एक टॉवल जैसा कुछ अपने नेक के पीछे यहाँ पर इस तरह लगा सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से इसको पकड़ के रखना है, यहाँ पे प्रेशर लगा के रखना है. जैसे ही आप यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं तो आपके एक्सटेंशन मसल्स यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं. यहाँ से आप इस पैड को दबाओ, प्रेस करो, दबाओ, 1 2 3 4 5, रिलैक्स. वेरी गुड. जब आप रिलैक्स करते हो तभी भी ये पैड नीचे नहीं गिरना चाहिए, या वो जो भी आप टॉवल यूज कर रहे हो वो नीचे नहीं गिरना चाहिए. इसको वापस टक करो, 1 2 3 4 5. अभी इस पोजीशन में आप एक्चुअली अगर आप देखो तो नेक कंप्लीटली ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया है और चिन टक ऑटोमेटिकली हो रहा है. तो इसमें हमको जबरदस्ती चिन टक करने की जरूरत नहीं है. अगर हम इसको प्रॉपर्ली नेचुरली यूज करेंगे एक टॉवल रोल की तरह, एक बार ये चीज हो जाती है, एक बार आप इसको समझ जाते हो और आप न्यूट्रल अपने नेक को स्टैंड कर सकते हो, तो फिर अपने हाथों के साथ इसको पूरी तरह पीछे लेके, अब हाथ पीछे लेते वक्त थोड़ा आगे आइए. हाथ पीछे लेते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है, हाथ पीछे करो. यस एग्जैक्टली. हाथ पीछे लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि ये नेक आगे नहीं होना चाहिए, नेक को आपको पीछे ही रखना है. तो जब आप उसको पीछे रखेंगे तो यहाँ से आप उसको पीछे टक करो, यहाँ पे प्रेशर लगाओ हाथ से. ओके, मेरे हाथ पे प्रेशर लगाओ प्रेशर. यस, प्रेशर लगाओ. 1 2 3 4 5, रिलैक्स. वंस अगेन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. तो बेसिकली इसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जहाँ पे हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ से इसको प्रेस कर रहे हैं
we are just pressing it here on the hand and there is no movement that is happening. There is only contraction that is happening, specifically contraction of extensor muscles, which is very much required in order to get your neck straight. ये जो extensor muscles हैं, हम इसका पूरा यूज पूरी तरह भूल जाते हैं क्योंकि हम बिल्कुल नेक मोस्ट ऑफ द टाइम आगे रखते हैं, वो पीछे नहीं हो पाता है और ये एक्टिवेट करता है हमारे एक्सटेंसर मसल्स को। ये सेकेंड एक्सरसाइज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारे मसल्स, साइड मसल्स के लिए है। काफी कॉमनली देखा जाता है कि फॉरवर्ड हेड के बाद जो सबसे कॉमन चीज है वो है साइड स्ट्रेच। जब आप साइड स्ट्रेच करते हैं तो आपको एक पेन इस तरफ या फिर आप अगर दूसरी तरफ कर रहे हैं तो एक पेन नजर आता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें प्रॉपर साइड स्ट्रेच करने की जरूरत है। ये आप तब नहीं कर सकते जब आपको ऑलरेडी पेन है, लेकिन आप ये थोड़ा सा पेन सबसाइड होने के बाद या फिर रेगुलर बेसिस पे प्रिकॉशनरी मेजर में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हाथ आपको पीछे की तरफ रखना है। ये हाथ पीछे की तरफ रखने से ये शोल्डर थोड़ा सा डिप्रेस होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए और दूसरा हाथ आपको कान के ऊपर रखना है इस तरह, ठीक है। और उसके बाद बिना नेक को घुमाए, बिना नेक को बिल्कुल रोटेट किए सिर्फ साइड स्ट्रेच कर रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल टेंड टू रोटेट देयर नेक्स, सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है दैट यू डोंट रोटेट। आप इसको सिर्फ साइड स्ट्रेच में रखिए और साइड स्ट्रेच करते रहिए। कम से कम इसको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है और ये 4 से 5 काउंट आप कर सकते हैं। सेम चीज आप दूसरे साइड के लिए भी करेंगे। तो दूसरी साइड का शोल्डर फिर वापस आप पीछे की तरफ रखो। नॉर्मली ये शोल्डर पीछे रखने का रीजन ये है कि जब आप अगर आपने ये एक्सरसाइज इस तरह किया और आपने ये नेक को यहाँ पर स्ट्रेच किया बिना शोल्डर को मूव किए, तो हम नॉर्मली शोल्डर को ऐसे मूव करने लगते हैं और हमें लगता है कि हम नेक स्ट्रेच कर रहे हैं, जो एक्चुअली होता नहीं है। इसीलिए ये हाथ पीछे रखिए हाथ को और ये इस तरह स्ट्रेच करके वी आर एक्चुअली गेटिंग द स्ट्रेच ऑफ फॉर द साइड्स। साइड का हमारा पूरा स्ट्रेच हो रहा है। सो इस तरह हमको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं उसे हम शोल्डर श्रग्स कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे शोल्डर को रिलीज करने के लिए है। यहाँ पे काफी टाइम लोगों को बहुत ज्यादा स्पैज़म होता है, ये सारा एरिया बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो इसको रिलीज करने के लिए हमें शोल्डर श्रग्स करने की जरूरत है। तो ये हाथ को इस तरह क्रॉस कर लीजिए, ओके, और क्रॉस करने के बाद इसको हल्का सा ऊपर उठाना है, एलिवेट करना है 1 2 3 4 5 काउंट्स एंड देन स्लोली रिलैक्स। वंस अगेन lift up 5 counts 1 2 3 4 5 and slowly relax। तो ये एक एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग्स जो काफी फायदेमंद होता है नेक एक्सरसाइजेस के लिए और इसको विदाउट फेल आपको करना चाहिए। इसके अलावा अब मैं बताने वाला हूँ आइसोमेट्रिक्स। आइसोमेट्रिक्स वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होती है लेकिन वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो नेक के जितने भी मूवमेंट हैं जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड टू साइड, इन सारे मूवमेंट्स के लिए हम आइसोमेट्रिक्स करेंगे। अब हम आइसोमेट्रिक्स कैसे करेंगे? ये हाथ आप यहाँ पर रख दीजिए और आप इसको प्रेस करिए पीछे की तरफ। यस, तो ये हमने पीछे के एक्सटेंशन मसल्स यानी कि नेक को जब हमें पीछे लेके जाना है तो उसके लिए जो मूवमेंट चाहिए उसको हम प्रेस करें। प्रेस 1 2 3 4 5। उसी तरह पेशेंट अपने हाथ से या फिर किसी के हेल्प से यहाँ पर आ सकता है और यहाँ से प्रेस कर सकता है। इसको प्रेस करिए, प्रेस 1 2 3 4 5। आप अपने हाथ से करिए इसको, हाँ प्रेस करिए 1 2 3 4 5। तो ये हो गया फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट। इसी तरह साइड टू साइड मूवमेंट्स के लिए हाथ साइड में होने चाहिए और यहाँ से प्रेस करिए 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। वंस अगेन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सिमिलरली आप दूसरी साइड में उसको कर सकते हैं 1 2 3 4 5 and relax। 1 2 3 4 5 and relax। तो ये हो गए आइसोमेट्रिक्स जहां पे हम नेक के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली सारे आइसोमेट्रिक्स करें, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड टू साइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं ये है सारे नेक मूवमेंट्स। तो जो मूवमेंट्स आपके नेक के आप करते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है पेशेंट्स को जैसे ही मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके नेक का मूवमेंट कैसा है तो वो ये पूरी तरह घुमाने लगते हैं इसको। तो ये जो सिचुएशन है ये आप एक्सरसाइज में भी इसको यूज मत करिए और अदरवाइज भी आपको ये सर्कल, गेटिंग योर नेक इन सर्कल्स इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया।
सो वी विल जस्ट सेपरेट, हम इसको पूरी तरह अलग करेंगे इन मूवमेंट्स को, एंड वी विल डू सिंगल मूवमेंट्स फॉर ऑल द positions of the neck. So basically what we are doing is first is forward bending. तो आप पूरी तरह forward bending जहाँ तक आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पेन होना चाहिए. अगर आपका लिमिट इधर तक है तो आप इधर तक ही स्ट्रेच करिए और उसके बाद उसको उस पोजीशन पे होल्ड करिए, एंड देन यू कैन गो टू एक्सटेंशन, यानी कि पीछे की तरफ नेक को इस तरफ रिलैक्स, और उसके बाद साइड फ्लेक्शन, इस तरह. ईयर लाइन से आप शोल्डर्स को टच करने की कोशिश करेंगे, आप उसे टच नहीं कर पाएंगे बट उसको आप सिर्फ टच करने के डायरेक्शन में काम करेंगे. और इसके अलावा हल्का सा रोटेशन भी होना चाहिए जहाँ पे आप इसको पूरी तरह यहाँ से घुमाओगे, बिकॉज इसमें आपके काफ़ी सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं नेक के, और ये ज़रूरी है कि ये सारे नेक मसल्स पूरी तरह रिलीज हो सके. रोटेटिंग ऑन दिस साइड, यस. तो ये है सारे मूवमेंट्स नेक के जो हमने वन ऑन वन सेपरेट किया है उसको. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस सर्कल मूवमेंट्स इन सर्कुलर डायरेक्शन, ये सारे मूवमेंट्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड टू साइड, ये सारे मूवमेंट्स हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं. एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. इवन व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क, इवन व्हेन यू आर डूइंग 6 to 8 hours ऑफ वर्क, आप एक ब्रेक ले सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली गेट इनटू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज. Secondly, talking about pillows, a lot of my patients keep talking to me about what kind of pillow should be used, किस किस्म का पिलो यूज करना चाहिए. तो बहुत से लोग हैं जो एकदम एब्सोल्युटली सॉफ्ट पिलो यूज करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ही हार्ड पिलो यूज करते हैं. सो दोनों ही कंडीशन में ये काम नहीं करता, क्योंकि अगर आपके नेक में कोई तकलीफ है और अगर आप एक सॉफ्ट पिलो यूज कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट पिलो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा. और इसके अलावा अगर आप कोई हार्ड पिलो यूज कर रहे हैं तो वो हार्ड पिलो उस कंडीशन को कंप्लीटली सपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता. इसीलिए इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एक मीडियम कंसिस्टेंसी का पिलो यूज करें. तो इट शुड नॉट बी टू सॉफ्ट एंड इट शुड नॉट बी टू हार्ड. ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए. मीडियम कंसिस्टेंसी का जो पिलो होता है, इसमें आप अपने नेक को पूरी तरह सपोर्ट कर सकते हैं, और आइडियली आप उसमें अपनी पूरी तरह आप सो सकते हैं. सो दिस इज सपोज टू बी अ गुड pillow whenever you have to use it for and a lot of people also ask me about sleeping positions, sleeping postures. sidelines होना चाहिए, पेट पे सोना चाहिए, बैक पे सोना चाहिए. so more or less sideline और बैक पे सोना is always good, but talking about lying down on your tummy is not a very good idea. So if you are prone to lying down on tummies, या फिर आप बहुत ज़्यादा पेट पे लेटते हैं, तो it is not a very advisable thing, so you should kind of avoid that.